ये मिस्र रोम यूना सब मिट गए जहां से, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एंड व्हाट इज द फर्स्ट मिलिट्री वैल्यू? कंट्री। अथर्व वेद में लिखा है मेरा राष्ट्र। As the Seventh Fleet was sailing into the Bay of Bengal, the Russians' nuclear submarines had come tailing that fleet. And we were doing very well, and all of a sudden, I don't know, we began to cave in. ट्रेड डील नहीं होगी, अरे नहीं होगी तो क्या हम मर जाएंगे क्या? How are these psychological tools used to create division in countries? Because you have worked in information warfare. ये CIA ने कलर्ड रेवोल्यूशन कराई है, ओवरथ्रो ऑफ India friendly regimes and imposition of regimes hostile to us, surround us on all sides by hostile states. देखिए साहब, most of these are paid from outside to start this अमन की आशा के तमाशे. Great to have you on the show, sir. Thank you. Thank you. And what a day and time to speak to you today, as we are also celebrating 80th Independence Day this time. That's so right. So my first question to you, sir, is we are celebrating Independence Day every year, but still, do you think there's a long way to go in terms of our strategic independence? We depend a lot on other countries, be it energy, weapons, technology. So what are the bottlenecks and how do you see it? I think that's a very good question to ask ourselves on our Independence Day, 80th Independence Day, as you have very so rightly framed it. The simple fact is that one of the core principles of our nationhood we've tried to maintain after independence in 1947 is that we have, tried to insist upon autonomy, autarky in critical weapon systems, strategic autonomy in decision making. We have said we'll not be camp followers, we'll not become, camp followers or, second tier relationship with some major superpower and hang on as their coattails or, lapdogs. We don't want to do that. And immediately after independence, we tried to follow non-alignment policy, at least in practice. We went to great lengths to cultivate non-alignment as a standard virtue, and it has been a part of our public life. But how free are we today? What is the level of our strategic autonomy? What is the level of our autarky in critical weapon system? We still have a long way to go. I mean, let me be blunt and straightforward. We still have a very long way to go. I would say one of the periods of maximal autonomy had been when we fought the 71 war. America was against us, China was against us, China, Pakistan, America had formed an unholy alliance against us, and Richard Nixon had tilted towards Pakistan, sent the Seventh Fleet. And the Chinese, if they didn't intervene, it was because they were having problems of their own. Lin Biao had staged a revolt against Mao. So that is what kept them from interfering. Otherwise, they would have certainly joined in that war. They were very much in mood too, and Henry Kissinger had gone to incite them. And then, of course, they had sent the Seventh Fleet. Yes. What saved us then was the our treaty of friendship, with the Russians. As the Seventh Fleet was sailing into the Bay of Bengal, the Russians' nuclear submarines had come tailing that fleet. And when they reached the Bay of Bengal, the Russian nuclear submarine surfaced just next to the aircraft carrier Enterprise, nuclear-powered aircraft carrier, and that Russian admiral came out of the coning of the submarine tower and he took off his hat and he doffed it towards the Americans ki hum bhi yahan hai. So, cool it.
and therefore the American fleet could do nothing. And in 13 days, we had broken Pakistan in two. I took part in that major war. I was there. I'm very proud of that fact that we were at the cutting edge. My batch was at the cutting edge when we broke Pakistan into two. 93 Pakistani prisoners of war surrendered. And 550 kilometers we went inside Bangladesh from three sides and captured the capital city of Dhaka. It was the greatest military victory of India in the last 2000 years. Yeah, true. And we had put up a benchmark of autonomy, autarky. Second benchmark came when, despite the whole world's protests, and especially America's anger, shangar, this, that, we had the Shakti series of nuclear explosions. Yeah. And we made ourselves a nuclear power and said, to hell with it. And thank God we did it when we did. You can see what is happening to Iran today, because they did not go nuclear well in time. So today we've had this. We are still doing pretty well. We are still sticking to our tradition of autonomy. But lately, I found that we were getting unduly scared of United States of America. Donald Trump was trying to push the world back into the era of unipolarity, which had ended by 2017. Started in 1990 with the collapse of the Soviet Union. Yeah. And by 2017, this era was over. We had come to an era of multipolarity. Russia, China, Yeah. India, North Korea, these had emerged as independent power centers which are fairly strong. So the era of unipolarity was over. And we were doing very well, and all of a sudden, I don't know, we began to cave in. कि ट्रेड डील नहीं होगी. अरे नहीं होगी तो क्या हम मर जाएंगे क्या? भाई अगर अमेरिका से ट्रेड डील नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी का भट्टा बंटादार हो जाएगा. हाँ, नुकसान पहुंचेगा थोड़ी देर के लिए, बट लुक फॉर अल्टरनेटिव मार्केट्स इन यूरोप, लुक फॉर मार्केट्स इन रशिया, सेल टू रशिया. अगर अंग्रेज नहीं बेच रहे तो वो जो मार्केट उनकी गई है वो आप यू शुड स्टेप इनटू इट. सेल टू साउथ ईस्ट एशिया, सेल टू अफ्रीका, sell to Central Asia. Why can't we do that? क्योंकि जान अटकी पड़ी है कि ट्रेड डील. And I'm sorry, America is acting hostile. Yeah. ये CIA ने colored revolution कराई है in bloody Sri-Lanka, in Bangladesh, in Nepal. As we were just discussing, colored revolution, overthrow of India-friendly regimes, and imposition of regimes hostile to us, surround us on all sides by hostile states, curtail and try and limit our power. So, sir, $1 अरब हमसे खा लिए कि आपको GE404 इंजन देंगे. $1 अरब खा लिए, हजम कर दिए, डेकार नहीं लिया. How many engines have we received in the last 4 years? 2. We should have bloody well cancelled the deal. But we gave an order of 200 engines more. अबे 100 में से 2 आए. Was it essential to throw good money after bad? अब वो हमें कह रहे हैं एकदम हमारा या तो F-35 लोगे जो 5 गुना ज्यादा महंगा है, Su-57 सोचना भी मत, हम ये लगा देंगे, वो तेल आपको सस्ता मिल रहा है रूस से, मत खरीदना, हम तुम पे 100% टैरिफ लगाएंगे. तू भाड़ में जा. Shove your tariffs where the sun don't shine. We are fed up. जितनी तुमसे दोस्ती दिखाने की कोशिश करो उतना आप सर पे चढ़ रहे हैं. अब सर पे चढ़ रहे हैं हमारे. आम का हम बनाने वाले थे. इंजन कौन सा था? जिस दिन अनाउंस हुआ कि भाई आम का हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज बनाएंगी, हमने कहा थैंक गॉड, ये कितना पहले कर देना चाहिए. फिर अगला खबर आई कि साहब इंजन होगा अमेरिका से. तो हमने कहा सवा सत्यानाश. और एग्जैक्टली वही हुआ है. 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे एक, अब बोला 200 करोड़ का देंगे, जो करना कर लो.
एग्रीमेंट था, ये था, वो था, चूल्हे में। एग्रीमेंट तो डोनाल्ड ट्रंप के जूती की धूल है ना यार। मसल दो, मरड़ दो, ये कचड़े का बनाओ, गोला और कचड़े के डब्बे में फेंक दो। ऐसे थोड़ी ना चलता है। विश्वसनीयता कोई Correct, चीज होती है। और अगर ऐसा दोस्त है तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, एंड आई वुड लीव इट देयर। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। देयर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, पीरियड। Very true. कि चाइना हमारा जन्मजात का दुश्मन है, हम अमेरिका को खुश करेंगे चीन से लड़के, जैसे यूक्रेन खुश कर रहा है अमेरिका के जो बाइडेन को कर रहा था Correct. रूस से लड़के। 8 मिलियन लोग उसका देश छोड़ के भाग गए, 2 मिलियन मारे गए हैं, पता नहीं कितने मिलियन और घायल हुए हैं। और मैंने साहब वाह वाह करो, बस आप ताली बजाते रहो, मैं कॉमेडियन हूँ, मेरे को तो ताली चाहिए। Correct. Then you end up becoming a vassal state. Then you become a vassal state. We are not in the business of becoming a vassal state. We are a civilizational state of 10,000 years standing. We can't be vassals of the United States of America. But do you think it's temporary because our ideologies match between India and US as a country, our values match? Is it only because Oh, of why Trump? our values have matched since 1947? Liberty, fraternity, equality, democracy. That was the theory, na? Yeah, true. What did we see in practice? Sare dictators of Pakistan have been darlings of America. Starting with Yahya Khan, Field Marshal Ayub Khan, Zia-ul Haq. ऐसे सांप, आस्तीन के सांप, और अब आसिम now. मुनीर, मुल्ला मुनीर को आई एम माई फेवरेट फील्ड मार्शल। मतलब तुम्हें डेमोक्रेसी तो नाम के लिए कोई लिप सर्विस भी नहीं है। डेमोक्रेसी का जड़ें खोखली कर दो, डेमोक्रेसी को पलटा तख्ता पलट करो और इनका महिमा मंडन करो। तो व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाट शेयर्ड वैल्यूज? Yeah. it's We not- had, we tried 30 years to improve relations with America. Americans also wanted to improve relations because they felt if we have to deal with a common threat in China, then they need the support of India and Japan and Asia. These are the only two powers that can stand up if they are together against China. But now we find you want friendly relationships with China. You want to have a G2 relationship with China. आप तो जाके बोल रहे हैं तुम ताइवान ले लो, हम कुछ नहीं करेंगे। So where are we then? आप क्यों लड़ने जा रहे हैं कि नहीं नहीं देखो सर हम चीन से लड़ लेंगे? क्यों लड़ लेंगे? अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है तो हम लड़ेंगे। हमारा नेशनल इंटरेस्ट अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे को खुश करने के लिए हम क्यों लड़े? तुम होते कौन हो? हमको लड़ा के मरवाने वाले और तमाशा देखने वाले और हमारे हथियार भी कट करने वाले। तो रूस इज अ ट्राइडेंट ट्रस्टेड फ्रेंड, जो बोलता है वो देता है। और वो कह रहा है कि Su-57 हमसे लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, अपने देश में बनाना, सोर्स कोड देंगे, इंजन टेक्नोलॉजी देंगे, सब टेक्नोलॉजी देंगे। Here it's more expensive without the technology and the source. और 1/3 द कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पे एक तबका है, नहीं नहीं हम अमेरिका के दोस्त हैं, यार हैं, रूस को थूको, रूस को। एक आपका ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है रशिया, आप उसको छिटको। तो फिर उसने भी बोल दिया आपको, जब आपने बोला कि नहीं नहीं जी हम तो अमेरिका के बड़े चाहने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जफ्फियां मारते हैं, पप्पियां मारते हैं, व्हाट ब्लडी नॉनसेंस। तो फिर रूस ने भी बोल दिया ठीक है साहब, वो जो अभी ईरान का तेल भी बंद हुआ, गल्फ खाड़ी का तेल बंद हो गया, तो उसने बोला साहब मार्केट प्राइस पे कर दीजिए। पहले हम $60 प्रति बैरल खरीद रहे थे, $120 प्रति बैरल, $140 प्रति बैरल वही तेल खरीदना पड़ गया कि रूस से कट्टी कर लो। क्यों? अमेरिका की कट्टी है। ये कोई बच्चों का खेल है क्या? कि कट्टी कट्टी कट्टी, पक्की पक्की पक्की। आपकी लड़ाई रूस से तो आप लड़ो, हमारी तो अच्छी बनती है। हम क्यों अपना रिश्ता खराब करें आपके लिए? इजराइल भी, Israel also. इजराइल इज अ कंट्री जिसने
हर लड़ाई में हमारा साथ दिया, वी एक्नॉलेज। लेकिन इजराइल को कोई हक नहीं है कि वो हमको बोले कि भाई मैं ईरान से लड़ रहा हूं, तुम भी लड़ोगे, तुम भी दुश्मनी करोगे, अच्छे रिश्ते हैं, काट दो। अरे भाई, ईरान हमारी मदद कर रहा है पाकिस्तान के बरखिलाफ, हमको सेंट्रल एशिया में जाने का लैंड रूट दे रहा है, अफगानिस्तान में जाने का लैंड रूट दे रहा है, चाबहार का पोर्ट दे रहा है। सबसे सस्ता तेल हमारा ईरान से आ रहा है। वो अमेरिका ने आदेश दिया काट दो, हमने काट दिया। जो हुक्म मेरे आका, इफ अमेरिका टेल्स यू टू जंप, यू कैन ओनली आस्क हाउ हाई। तो आई थिंक दिस इज वेयर आई think we started faltering a little, but I'm glad कि अब हमको दिख रहा है कि हमारी सरकार भी समझ गई है कि कोशिश कर ली अच्छे रिश्ते करने की, हमारा फर्ज था कोशिश करना। अब लेकिन ताली दो हाथ से बजती, ट्रू, इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप। द अदर साइड आपके साथ दुश्मनी दिखा रही तो फिर तो आपको शत्रु बोध हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप ऐसा करोगे, what stops us from going to the Russia, India, China triangle? We are the president of BRICS. We should promote BRICS as a counterweight. And why not? अगर आप हमको लात मारोगे when we are trying to be nice, आप हमारे सेलर्स मार डालोगे कि मेरे बाप का राज है, क्यों साहब? Do Indian lives come cheap? Indian lives matter. इससे मोरल भी डाउन होता है, जैसे Naturally, पूरे देश में मोरल डाउन होगा। And we must end our energy dependency. 89% of our energy is coming from outside. ट्रू। 47 से यही हाल चले आ रहा। Go for green energies. Go for thorium. Why have we not activated the thorium cycle? अब जाके वो fast breeder test reactor bana, it should have been ready much longer, much more earlier in time. So you spoke about colored revolutions, and we often speak about intelligence agencies trying to destabilize countries. What do you think we have to learn from countries like Bangladesh and Nepal? What happened? And also, ये होता है कि how are these psychological tools used to create division in countries? Because you have worked in information warfare. I was Brigadier General Staff, Information Warfare, Psychological Operations in Headquarters Northern Command in J&K. Right? So I know exactly how these things are done. What I want to tell you is that since the Arab Spring, talking of way back in 1990s, almost 80s, 90s, ये अरब स्प्रिंग शुरू हो गया। तुनीजिया, अल्जीरिया, इजिप्ट में तख्ते पलट कर दी बाय दीज सोशल मीडिया रेवोल्यूशंस। उन दिनों तो टेक्सटिंग पे कर रहे थे, मास टेक्सटिंग। जैसे यू ऑर्गेनाइज अ फ्लैश डांस मॉब, फ्लैश मॉब डांस, यू नो, तो आप फ्लैश मॉब भी ला सकते हैं और वो जाके तख्ते पलट करा सकते हैं। बड़ा इसका एक देखिए, हमने स्टडी किया तो एक पैटर्न नजर आता है। कलर्ड रेवोल्यूशंस हुई अरब में, मिडिल ईस्ट में, ईस्टर्न यूरोप में, ऑरेंज स्प्रिंग, वायलेट स्प्रिंग, दिस स्प्रिंग, दैट स्प्रिंग, प्राग स्प्रिंग, यू नो, और फिर क्लोजर होम श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। इसका एक पैटर्न है, प्लीज अंडरस्टैंड। कॉज बड़ा जेन्युइन होता है, जेन्युइन कॉज नहीं हो तो ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। ज्यादातर कॉज होता है करप्शन, जो कि है थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स में है। नेपाल में थी करप्शन, बिल्कुल थी, इसमें दो रैम्पेंट थी वो, रैम्पेंट करप्शन, और उसके लिए लोगों में आक्रोश था। तो आप आइडेंटिफाई करिए कॉज और प्लग इन करिए, प्लग इन इनटू दैट ग्रीवेंस, फिर उसको एम्पलीफाई करो, उसको स्नोबॉल इफेक्ट करो थ्रू द सोशल मीडिया। पहले होता था फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, अब हो रहा है इंस्टाग्राम के जरिए। ठीक है, फिर जब आप माहौल तैयार कर लो तो फिर आप लोगों को पैराशूट करो, ट्रेंड सैबोटियर्स। इसका झलक दिख रहा है अभी जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का। बांग्लादेश में क्या हुआ साहब,
ये स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया तमाशा, और फिर मोहम्मद यूनुस साहब को डायरेक्ट वॉशिंगटन से पैराशूट किया, वॉशिंगटन से पैराशूट किया साहब। यहाँ आके जब वो व्हाट वाज हिज क्लेम टू फेम कि वो ग्रामीण बैंक चलाते थे, फार्मर्स को, मछुआरों को लोन्स ने, माइक्रो फाइनेंस करते थे। फिर उन्होंने उनका पैसा लिया, उनका जो बैंक में पैसा डाला था, और हिलरी क्लिंटन को $6 लाख का कैंपेन फंड में कंट्रीब्यूशन किया इस हीरो ने। तो इसको पहले नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल पीस प्राइज, कि तू महान आत्मा है। और फिर इसको पैराशूट कर दिया, जा टेक चार्ज इन, हसीना वाजिद जाए भाड़ में, इलेक्शन जाए भाड़ में। ये अश्वेत लोग कौन होते हैं? अपनी सरकार चुनने वाले। हमारे बाप का राज है, हमारे गुलाम हैं, हम फैसला करेंगे कौन राज करेगा ढाका में, वॉशिंगटन से। और इनको पैराशूट कर दिया कि 2-3 साल इलेक्शन मत कराना, कोई फायदा नहीं होता इलेक्शन, डेमोक्रेसी ये कालुओं के लिए थोड़ी ना। डिले कराते रहे इलेक्शंस, डिले कराता रहा कि शायद मैं परमानेंट गवर्नर फॉर लाइफ बना दिया जाए मेरे को, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। लोगों ने जैसे ही इलेक्शन नहीं उठा के पटका बाहर। और वहां जब बन गया प्रेसिडेंट, तो मैं भारत से लड़ूंगा, मैं बिहार पे कब्जा करूंगा, उड़ीसा पे कब्जा करूंगा, वेस्ट बंगाल पे कब्जा करूंगा, 7 सिस्टर मेरी होंगी, चिकन नेक में काट दूंगा। अबे तेरे हाथ पांव काट देते, टाइम में निकल गया, तेरी किस्मत ठीक है। और लोगों ने निकाला बांग्लादेश, द पीपल ऑफ बांग्लादेश थ्रू हिम आउट। ठीक है, तो ये पैटर्न देखिए बड़ा क्लियर है। और इस पैटर्न में एक फेज 2 पैटर्न होता है। पहले तो जेन्युइन मुद्दा आइडेंटिफाई करके उसको स्नोबॉल किया जाता है, इमोशंस उसी में, इमोशंस में उसको अराउज किया जाता है, भड़काया जाता है, स्टूडेंट्स को भड़काया जाता है कि आओ गलियों पे उतरो। ठीक है, और वो उतरते हैं बेचारे। फिर क्या होता है, गुंडे लाए जाते हैं, मवाली, स्मगलर, मर्डरर्स, रेपिस्ट, हिस्ट्री शीटर, और वो आके पुलिस पे टूट के पड़ जाते हैं, मार काट सिर फोड़ देते हैं पुलिस के, जैसे दिल्ली में किया गया हाल में। सिर फाड़ देते हैं पुलिस वालों, खूना खच्चर कर देते हैं वर्दियां हमारी। ठीक है, और फिर अगर पुलिस अपने आप को सेल्फ डिफेंस भी करे, मार दिया मार दिया मार दिया विक्टिम। और फिर हमने एक और नई ट्रिक देखी, इसका इंप्रूवमेंट, आर्म्ड स्नाइपर्स छतों पे बिठा दिए। वो पहले कभी फायर करता है पुलिस पे, फिर फायर करता है स्टूडेंट्स पे, और 5, 7, 8, 9 स्टूडेंट मार डालता है। उनकी लाशें लेके मार दिया, जलियांवाला बाग, खूना खच्चर, ये वो, उतारो सरकार को, मारो सर को। वो ओरिजिनल कॉज गया भाड़ में, करप्शन गई भाड़ में, सरकार को उतारो, सरकार की ऐसी तैसी करो, मार डालो, ये करो। और अराजकता फिर फैलती है गलियों में, मॉब लिंचिंग, मॉब्स दौड़ने शुरू होते हैं, घर जलाते हैं, औरतों का बलात्कार करते हैं, जैसे बांग्लादेश में किया था। थैंक गॉड नेपाल में हिंदू जाति के लोग हैं, तो उन्होंने बलात्कार जैसा तमाशा नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी कई सारे लीडरों को मार दिया, 5 स्टार किसी को जला दिए, ये कर दिया, अपनी पार्लियामेंट जला दी। जब तक होश आया, ज्यादा दिन नहीं चला। बांग्लादेश में तो 6 महीने 8 महीने सिवाय गदर के और कुछ था ही नहीं। और वहां के लोग भी असली में पूछो तो तंग आ गए हैं कि भैया हम हसीना वाजिद के नीचे ज्यादा अच्छे थे, हमारी इकोनॉमी तो अच्छी चल रही थी, 2 रोज की रोटी तो मिल रही थी। यहाँ तो गदर, मार डालो, काट डालो, जिहाद करो, फसाद करो, दंगा करो। अबे दंगों से पेट नहीं भरता, रोटी नहीं चलती, रोजी रोटी नहीं आती दंगों से। हरामखोरी करो अपने देश के खिलाफ, अपनी सरकार तख्ता पलट कर दो अमेरिका को खुश करने के लिए। अमेरिका से कुत्ते बुलाओ पालतू, और वो दुम हिला के बैठ जाएं ढाका में, तो फिर यही चीज ट्राई की गई भारत में। अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी आई है, इसका जो फाउंडर है, क्या नाम है? अभिजीत दिपके। ये कहाँ पढ़े हैं बाय द वे? बोस्टन। दूसरे जो है देव साहब, क्या नाम है? एक आशुतोष रांका और सौरभ दास। सौरभ दास,
सौरभ दास, सॉरी नॉट देव, दास, ये नेपाल के हैं, लेफ्टिस्ट लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट। ये कहीं और पढ़ के आए हैं। कई लीडर जो है दुबई से आए हैं, पैराशूट किए गए हैं अंदर। तो ये पैटर्न तो बड़ा क्लियर है ना साहब। भारत के लोग केपेबल नहीं है अपने इश्यूज खुद सुलझाने में। ये वॉशिंगटन से, बॉस्टन से, दुबई से पैराशूट करने पड़ते हैं। और पहले स्टेज में तो वो जेन्युइन कॉज उठाते हैं। मुझे पहले कहा गया कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हैं साहब, बख्शी साहब। तो मैंने बोला कि मैं समझता हूं कि पहले प्रधान साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद ही कोई हिमाकत में बात हो सकती है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे, ना वो इंजन चला रहे थे रेलवे का, ना वो गार्ड थे उस ट्रेन पे, ना वो स्टेशन मास्टर थे। फिर भी उन्होंने रिजाइन क्यों दिया जब एक्सीडेंट? अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी उन्हीं के पास। अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अगर मैं बटालियन कमांडर हूं और मेरी कैंटीन में धांधली हो जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जो अच्छा होता है मेरे को क्रेडिट दो, और जो बुरा होता है मेरे जूनियर टांगो। दैट इज नॉट द आर्मी वे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उल्टा होता है इसी। हमारी आर्मी के रिस्पॉन्सिबल, बीइंग रिस्पॉन्सिबल मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट गोज रॉन्ग। एब्सोल्युटली, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और आप नैतिकता के आधार पे आप रिजाइन करें। ठीक है, तो हमने देखा कि जब पहले पहले ईगो इशू बना लिए, नहीं रिजाइन देंगे। 2004 से चला आ रहा है पेपर लीक, तो मतलब चलता रहेगा। वैलिड एक्सक्यूज नहीं है। इट इज नॉनसेंस, इट इज डेंजरस टू टॉक लाइक दिस। इट्स योर जॉब टू सेट इट राइट। 2004 से चले आ रहा है पेपर लीक और चलता रहेगा। आई एम सॉरी, दैट्स नॉट ऑन, दैट इज नॉट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस। ये क्या है? तो पहले तो नहीं जी, अड़ गए, क्योंकि कांग्रेस मांग रही है इस्तीफा तो हम इस्तीफा नहीं देंगे, प्रधान साहब नहीं देंगे। वो सर ये क्या तरीका है? इज इट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि आपके कार्यकाल में पेपर लीक हो गया? ये कोई अचीवमेंट है? धब्बा है, धब्बा है आपके ऊपर, और आप सरकार को मलिन कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप, मेरे ख्याल से तो उनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बट आई वॉज वेरी हैप्पी, अंततः हमारी डेमोक्रेसी वर्कड एंड ही वॉज आस्क्ड टू रिजाइन। अ बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट, 10 years पनिशमेंट, 10 crore फाइन। नंदन नीलेकानी जैसे पढ़े लिखे लोग, आदर्श जो हैं इस सोसाइटी के, उनको अपॉइंट किया गया टू रिफॉर्म द एग्जाम सिस्टम। सो दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज सिंसियर of setting things right. And that was the right thing to do. That is the right thing to do. The very first step in removing a problem is to first admit that there is a problem. Acknowledgement, as you said. Acknowledge that there is a problem, only then will you set it right. नहीं साहब ठीक है, 2004 से चला आ रहा है। What bloody utter nonsense. 2004 से चला आ रहा है, not for a day is it acceptable. Very true. ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अंततः आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑन द 80th इंडिपेंडेंस डे कि हमारी सरकार ने एक मिसाल सेट करी है हाउ टू डील विद कलर्ड रेवोल्यूशंस। दे हैव सेट एन एग्जांपल। 1989, Tiananmen Square, China. The students of China had revolted. And you know what the Chinese PLA had done? टैंक्स लेके आ गए थे और टैंकों के तले कुचल दिए थे बच्चे, स्टूडेंट्स। वो पीएलए वाले रो रहे थे, साहब हम नहीं करना चाहते बच्चों को, अपने ही बच्चों को मारना, मत कराइए, हमसे मत कराइए। बट आदेश दिया और उन्होंने रगड़ दिए, दे ओबेड देयर ऑर्डर्स। अब भूल जाइए कि पैलेट गन नहीं चली नहीं चली, अब भूल जाइए कि राइफल चली नहीं चली, वो टैंक रोन दिए यार। वेरी ट्रू, राइट। हमने क्या टैंक चलाए? नहीं। ठीक है, हमने, आई थिंक इट वाज कंट्रोल्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वायलेंस, विद ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट। आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे एक कलीग है, फिनलैंड से कॉल किया एंड ही रेड द न्यूज़ की प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली में। द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी इज
क्या चल रहा है, क्या इशू है. I told him that this is the background of this. So he asked me how many people are killed. I said none. So he said I was in Pakistan last year and 7 people were killed. So that's the only discussion we had. No. I am telling you, in Tiananmen Square in China, thousands were killed here. ठीक है, अभी ईरान में हुआ था, हालांकि उन्होंने भी काफी कंट्रोल कर लिया था, वहां भी रूफ टॉप स्नाइपर्स ने फायर करके पुलिस भी मारी थी और प्रोटेस्टर्स भी मारे थे, बट वहां भी आंकड़ा 3000 का. ठीक है, यहाँ विदाउट अ सिंगल पर्सन बीइंग किल्ड इट वाज हैंडल्ड बिकॉज यू एड्रेस द जेन्युइन कॉज. आपने स्टीम पूरी निकाल दी. भाई प्रेशर कुकर में वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व इसीलिए होता है. अगर आप दबा के बैठ जाओ, नहीं प्रधान साहब नहीं जाएंगे, हाँ, ये ईगो बैटल. नहीं, ईगो नहीं कुछ होता. ये डेमोक्रेसी है, वो आपके बच्चे हैं, सो देयर इज नो ईगो. वो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या रहीम हरि को घटियो, जो भृगुमारी लात. ये रहीम का दुआ. तो वो छोटे बच्चे हमारे ही बच्चे हैं. Sir, the basic problem that we must understand is we have a youth dividend. हमारा यूथ डिविडेंड है. 50% भारतीय 27 की उम्र के नीचे है जी. मैक्सिमम भारतीय जेन जी हैं. सो क्वाइट ऑब्वियसली यू हैव टू लुक आफ्टर जेन जी. ये अगले भारतीय हैं. आप और मैं, हमारा तो जो होना था सो हो लिया. बिल्कुल ठीक है साहब, अब ये बच्चों को देखना है. एंड इसके लिए द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इज टू क्रिएट जॉब्स एंड मोर जॉब्स. इतनी सी जॉब्स के लिए करोड़ों बच्चे ट्राई करेंगे तो 80% तो दे कांट, एवरीबडी कांट टॉप द IAS एग्जाम, टॉप द IIT एग्जाम, टॉप द नीट एग्जाम एंड बिकम अ डॉक्टर. बाकियों का क्या होगा कालिया? That's the real frustration. That is the real problem, sir. और I was very shocked जबकि जो हमारी जॉब्स हैं, पैसे बचाने के नाम पे हमने उनको काटना शुरू कर दिया. हमने अग्निवीर बना दिए. सर, you need more jobs, not less. Yes. और No. वोकेशनल ट्रेनिंग भी नहीं होते जैसे हमारे कोर्सेज से. अरे साहब, वोकेशनल ट्रेनिंग मोस्टली ड्रामा होता है. उनमें से कितनों को नौकरी मिली है? नौकरी नहीं मिलते ना, जैसे आर्ट्स लिटरेचर जैसे ग्रेजुएट्स. और आपका कल्चर है कि सबको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए. ब्लू कॉलर वर्कर वो बनना नहीं चाहता. अपनी इंडस्ट्री वो खोलना नहीं चाहता. आप इनकल्चरेशन कर नहीं पाए. करनी पड़ेगी आपको. एंड यू विल हैव टू इंक्रीज जॉब्स. यू विल हैव टू इंक्रीज जॉब इन अ मैन पावर सरप्लस कंट्री. यू आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड. Your major resource is manpower. You can't start following policies for manpower cutting unless we are lost our minds. Very true, very true. Potential को nurture नहीं कर रहे. That is our greatest resource. माओ ने तो 3.2 मिलियन मैन की आर्मी बना दी थी. ये देखो, नौकरी दो, लगा दो, हर किसी को रिस्पेक्टेबल जॉब देने की कोशिश करो. So we have to now think in those terms. A youth dividend, demographic dividend will be to our advantage, providing if and only if we can generate jobs. ये मैसेज 80 अपने 80th Independence Day को should go all over the country, that we, our prime priority should be to create jobs, and I'm sure the government will address this issue. So what do you have to say about this Aman Ka Asha brigade who thinks that dialogue से resolve हो जाएगी सारी conflict with country like Pakistan? देखिए साहब, most of these are paid from outside to start this अमन की आशा के तमाशे. That is all that I would say. You know, और अभी पाकिस्तान एज पर डिज़ाइन अमेरिका चाहता है कि ये मैं दोनों के बीच में टॉक्स कराऊं और बंदर बांट करूं कश्मीर की. ये कश्मीर पाकिस्तान को, चुप रहे तू. अबे तू जा भाड़ में, तू जा भाड़ में. हमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए कश्मीर पे. वी विल सॉल्व आवर ओन इश्यूज. और पाकिस्तान ज़रूरत से ज़्यादा उचकेगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा.
आधा अपना देश खो दिया था जब इन्होंने एक इलेक्शन चोरी करी थी 1971 में। अभी हाल में एक और इलेक्शन चोरी करी है बिल्कुल। इमरान खान की, और लोग के हजूम सड़कों पे निकल आए थे, कोर कमांडर का घर फूंक दिया था लाहौर में, ठीक है, पंजाब में, जो हार्टलैंड है इसका। अब तो वहां तो साहब गदर हो रहा है पंजाब में, सॉरी, और पाकिस्तान में। पीओके में आपके मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है, मौलाना डीजल ने क्या कहा है, अबे आसिम मुनीर राज करना है, वर्दी उतार, इलेक्शन लड़। वर्दी तूने डाल रखी है, लश्कर हमको खड़े करने को बोल रहा है भारत से लड़ने के। तेरे को तनख्वाह किस लिए मिल रही है, तू लड़ सकता है? हमें लड़ा के मरवा रहा है सिविलियंस को। सिविलियंस के लश्कर खड़े करा, लश्कर ए तोयबा, जैसे मोहम्मद, झागुई फंगुई, पता नहीं क्या क्या कार्टून नेटवर्क बना रखे हैं, ठीक है। और कहता है कि बालूचिस्तान में तो पहले गदर था ही, अब पश्तूनख्वा में खून की नदियां बह रही हैं, पीओके में गदर हो रहा है। ये देश टूटने की कागार पे। बिल्कुल। कब तक अमेरिका इसको जिंदा रखे, कब तक सऊदी अरेबिया इसको भीख के कटोरे में पैसे डालते रहेंगे? चीन भी परेशान हो गया। Sir, you have been a soldier and a spiritual leader. So today, so many young Indians are struggling with anger, frustration, confusion. So, what is one spiritual lesson that they need the most, you think? देखिए, जब मैं रिटायर हुआ था तो मैंने कहा भाई मेरे को सरकार ने बड़ी इज्जत बख्शी, मुझे 2 स्टार जनरल बनाया, ठीक है, मेरे को विशेष सेवा मेडल, सेना मेडल वगैरह प्रदान किए। नाउ इट्स माय पे बैक टाइम। तो रिटायरमेंट के बाद 2008 में रिटायर हुआ था, तब से मैंने स्कूलों कॉलेजों में जाना शुरू किया है, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया है, टॉकिंग टू द चिल्ड्रन और ड्यूटी, ऑनर कंट्री, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म। वन लेसन दैट आई कैन गिव, भैया आप चाहे सोल्जर बनो ना बनो, जाके मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि अच्छे बच्चे आएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाएं, यू नो, और खासकर हरियाणा के बच्चे तो बड़े तगड़े, फिजिकली फिट है, राइट मटेरियल टू सेंड टू द आर्म फोर्सेस। तो हरियाणा के बगैर पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, डाउन साउथ, सब जगह मैं गया हूं, बट मैं बच्चों से बात करता हूं वैल्यूज, मिलिटरी वैल्यूज। एंड व्हाट इज द फर्स्ट मिलिटरी वैल्यू? कंट्री। अथर्ववेद में लिखा है मेरा राष्ट्र, राष्ट्र के प्रति भक्ति। ये यू नो, मे माई मदरलैंड ग्रांट मी द लस्टर ऑफ गोल्ड, कि ये इतनी पावन धरती है जिसको मैं पांव से रौंदता हूं, ये मेरी माँ है। दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म जापान में बच्चों को सिखाया जाता है। जापान इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द फुजियामा इज द मोस्ट एस्थेटिक पीक, द चेरी ब्लॉसम इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर। वो खुद टीचर स्टूडेंट लग के अपने बाथरूम, अपने क्लासरूम, अपने वरांडे स्कूल के चमकाते हैं। ये इट विल बी द बेस्ट क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस, क्वेस्ट फॉर परफेक्शन। आपने अपने देश की तरफ देखा है? द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कहाँ है? इधर है। सबसे बड़ा रेगिस्तान इधर है, सबसे बड़े जंगल इधर है, मरुस्थल, नदियां क्या नहीं है। यू शुड बी सो प्राउड ऑफ दिस कंट्री। और 10,000 साल, 10,000 years एंड काउंटिंग एज पर रेडियो कार्बन डेटिंग, राखी गिरी यहाँ हरियाणा में, और हमने जाके देखा वो सिंधु घाटी सभ्यता की शहर। अपर लेयर्स 8,500 BP बिफोर प्रेजेंट, डीपर लेयर 9,500 रेडियो कार्बन डेटेड। आप समझ रहे हैं? साइंटिफिक एविडेंस की 10,000 साल। तो फिर साहब एक बड़ा अच्छा इकबाल साहब ने कहा था, ये मिस्र, रोम, यूना सब मिट गए जहां से, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मिस्र, ये इजिप्ट, ये रोम, ये ग्रीस, ये सब खत्म हो गए। इनकी वो सभ्यता ओरिजिनल
जी और आज की सभ्यता में कोई मेल भाव नहीं, कोई समानता नहीं। वो कुछ और थे, ये कुछ और है। ठीक है, वो इस्लाम को कन्वर्ट हो गए, वो क्रिश्चियन बन गए, वो फलाना हो गए, ढिमकाना हो गए। एक हम हैं जो वैसे ही कि वैसे चले आ रहे हैं। सिंधु सभ्यता की सील्स पर आपको पशुपति नाथ, भगवान शिव की प्रतिमाएं मिलेंगी। तब भी शिव की पूजा होती थी, आज भी शिव की पूजा होती है। आज भी ये कावड़ जिनका हम बैंड सुन रहे हैं, वो अभी तक वो शिव की पूजा के भक्ति भाव में जाते हैं। पशुपति नाथ वो सील है, शिवा सराउंडेड विद एनिमल्स। ध्यान मुद्रा की सील, यानी योगा और ध्यान, these are the two oldest leitmotifs of the Indian civilization। वो तब भी थे, आज भी हैं, और सो हेल्प अस गॉड आज से 10,000 साल बाद भी कायम रहे। जी देयर इज समथिंग हमारे में जो इमॉर्टल है, प्रिजर्व्ड है। सिविलाइजेशन बी लेगेसी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। Whether you become a doctor, you become an engineer, you become an IT specialist, professor, teacher, you know, entrepreneur, doctor, you have first of all to be a good Indian. That is the message I can give to our children on the eve of Independence Day. India has got great potential. We can be a superpower. Yes, we have problems. Who doesn't have problems? every country has America is having serious problems. China is having problems. Who doesn't have problems? But we have the youngest population in the world. That should be our demographic dividend. And for that, it is the job of the government to create jobs. And I'm sure they will. They are alive to it. Alive to this responsibility. Millions of jobs we have to create to keep the youth of this country usefully occupied. rightly said, sir, and it's an absolute honor to host you today. And hopefully, the army values and the civilizational legacy that we have a lot to do, but still we will. Jai Hind, sir. Jai Bharat, Jai Hind. Jai Hind.